राजस्थान फोरम का आईटीसी राजपुताना के साथ मिलकर श्री सीमेंट इसके प्रस्तुत करता है. It is an endeavor under which we bring artists like Mr. Ketanji to a forum wherein you can have a conversation with him around his art, around his experiences, and around his personality. A huge round of applause for our guest and for our Rajasthan Forum member, Ms. Sangeeta Juneja, who's going to be in conversation with Mr. Ketanji. To deliver the welcome address, may I request Mr. Rishi Mattu, General Manager, ITC Rajputana, to step forward. केतांजी से मेरा परिचय अभी से करीब 2 साल पहले हुआ था. प्री पेंडेमिक की बात है, जब इन्होंने अपनी श्रृंगार करके एक आर्ट कलेक्शन है. हाँ जी, साज श्रृंगार. हाँ जी, उनसे उसका एक पैम्फलेट बना के उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था. और जब मैंने वो पैम्फलेट देखा और उसकी पेंटिंग्स देखी तो मैं बिल्कुल ही एक सिचुएशन में आ गया था कि ऐसा भी एक ये पेंटिंग है या ये एक्चुअली एक फोटोग्राफ लिया गया है. मतलब कहने का ये मतलब है कि उनकी जो कला है, उनका जो फाइननेस, जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो चेहरे का के फीचर्स हों, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेलिंग हो, वो इतनी शानदार थी कि मैं देखता रह गया. थैंक यू सो मच आज यहाँ पे आने के लिए, और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ. हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. थैंक यू. Rishi ji, again I say that it's an honor to have with us Mr. Gopal Swami Ketanji, who was born on the 2nd February 1958 in a small town in Rajasthan. His paintings have been processed through human sensibility, the way he saw his own role as an artist. His work has been through many phases and styles that includes realistic and abstract art. It has been a long and eventful journey of discovery and stylist flitting, almost like a butterfly. His conviction to use his freedom on canvas separates him from many of his contemporaries. He worked as an assistant art director for feature films like Muqaddar Ka Sikandar, Kalia, Abdullah, and Jwalamukhi. He also worked as illustrator for Rajasthan Patrika for 2 years. His Bani Thani painting featured on poster for Writers of India Festival, Paris 2014. His Bani Thani and Devashri paintings were included in the book Mona Lisa Reimagined, and his works were acquired for the collection of Museum of Sacred Art in Belgium. Gopalji was awarded the Rajasthan State Award for contribution in the field of art 2016, Shani Rajasthan Award 2015, Maharaja Sajjan Singh Award 2017, and this list goes on. In conversation we have with him our own Rajasthan Forum member, the versatile Ms. Sangeeta Juneja. We all know Sangeeta ji's love for art. She appreciates art. She's a collector of art, runs the very popular and famous Juneja Art Gallery in the city. Thank you so much, Sangeeta ji, for being in conversation. Thank you so much, Gopal ji. Sit back, all of you, and enjoy this evening. राजस्थान फोरम के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत खुशनसीब हैं केतांजी जी के साथ कॉन्वर्सेशन में. इनकी 30-40 साल की कला यात्रा हम आपको दिखाएंगे स्लाइड्स और बातों के जरिए. You all know that he's a brilliant painter, artist. What you all don't know is he's a fantastic human being, very humble at heart, a simple soul. 30-40 साल आपने पेंटिंग के जर्नी का कला यात्रा किया है. शुरुआत की बताएंगे कि आप बचपन से ही आपको शौक था पेंटिंग का, और क्या आपको पढ़ने का पेंटिंग मौका मिला या घर में माहौल बताएं. नमस्कार. मेरे पिताजी आर्ट टीचर थे, तो मेरी शुरुआत की क्लासेस वहीं लगी. हमारे पहले लकड़ी के चूल्हे होते थे, तो लकड़ी के चूल्हे से कोयला लेके रसोई के फर्श पे ही मेरी कला शिक्षा वहीं से शुरू हुई. तो फिर हमारे वहाँ पे धोरे होते हैं एरोप्लेन, दोनों में मिट्टी को सीधा करके तिनके से ड्रॉ करना, वो करना, ये मेरा खेल का हिस्सा है सारे. तो
ये बचपन से थोड़ा सा कला के प्रति ज़्यादा रुझान था, तो थोड़ा सब परिवारों में और में जहाँ कहीं भी शादियाँ होती थी तो उनके तोरण सजाने, उनके घर के बाहर कोई कहता है या गमला बनाओ या सिपाही बनाओ, पनियारी बनाओ या रेलगाड़ी बनाओ, तो पूरे कुटुंब की शादियों में मेरा 3-4 दिन यही काम होता था कि पूरा घर को सजाना। तो यही मतलब खेल खेल में मेरा सीखना हुआ जी। फिर मैं जब करीब 11-12 साल का होगा तब मेरे पिताजी ने मुझे एनाटॉमी बुक है तो वो मुझे ला के दे दी थी। तो मेरे पास और तो कोई इन्फ्लुएंस था ही नहीं कुछ आर्ट को देखने का, मेरे पास वो एक ही किताब थी और मैंने उसको इतनी बार घोटा कि एनाटॉमी मेरे मतलब एक तरह से कहूँ ना कि डीएनए में आ गई। और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, उसी को बनाना, उसी को समझना, उसी को करना, इसके कारण मेरे एनाटॉमी में अच्छी पकड़ हो गई। तो फिर सहयोग से मुझे मैं ऐसे ही ऐसे कैलेंडर वगैरह हमें मिलते थे देखने को, आर्ट के नाम पे कैलेंडर से इंस्पायर होने का मौका मिलता था। तो ऐसा पंडित साहब का कैलेंडर था, छुट्टियों में था तो मैं सिस्टर के यहाँ कैलेंडर की नकल बना रहा था ऐसे। तो रास्ते से चलते हुए माणिक जोशी आर्टिस्ट थे लाडनू में थे उस समय, उन्होंने मेरा काम देखा खिड़की में से, फिर उनसे परिचय हुआ, उन्होंने मुझे रंगों का ज्ञान उन्होंने दिया, स्केचिंग का महत्व उन्होंने समझाया। तो फिर मेरे स्केचिंग का इतना जुनून चढ़ा कि हर समय मेरी ड्रेस ही होती थी, एक झोले में ड्राइंग कॉपी और एक पेंसिल, तो मेरी मतलब यूनिफॉर्म ही हो गई थी वो, चोला पजामा और एक बैग में कागज और पेंसिल। तो बस रोज हर जगह जाओ, बस स्टैंड जाओ, ये मैंने आउटडोर स्केचिंग बहुत की। तो ये मेरी शुरुआत हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है अनुभव जिस तरह से आपके जीवन में ये, क्योंकि आपके जो पेंटिंग्स इतनी सजीव हैं, ह्यूमन फिगर्स इतने रियल लगते हैं, जब तक एनाटॉमी का ज्ञान नहीं हो आर्टिस्ट के फिगर्स में वो कन्विंसिंग नहीं हो लगते हैं। तो इस तरह से आपके गुरु आपके साथ और जुड़ते गए। तो आप बताएंगे आपके शुरुआती जो काम जो आपने बहुत कम उम्र में काम शुरू किया था, तो आपने जिक्र किया था आपने शायद सबसे बचपन में ऐसा काम बताया जिसके बारे में जो उसमें झलकती हो, मैच्योरिटी भी झलकती हो, जो आपने बनाया था। वहाँ सदासर में एक और बीएड कॉलेज था, तो बीएड कॉलेज में क्या उनको चार्ट बनाने पड़ते हैं, तो फिर 10-12 साल की उम्र से मैं वो चार्ट बनाना शुरू हो गया। तो उसमें हर समय कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, आज इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, तो कहीं अपने को कोई कहानी का दृश्य इलस्ट्रेट करना है, तो इन चीज़ों का मतलब कहें कि भी काम से काम सीखने वाला एक दौर शुरू हुआ मेरा। उसमें मेरी मेमोरी ड्राइंग भी अच्छी होती गई और मेरा रेफरेंसेस भी अच्छे होते गए। ये आपने अपने फादर का पोर्ट्रेट बनाया है, किस उम्र में बनाया है? ये मैंने जब रंगों के बारे में पहली बार सीखा था तो मैंने लाइव पोर्ट्रेट बनानी शुरू की थी। तो मेरे फादर की ये मेरी करीब 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में अपने पिताजी का उन्होंने इतना बढ़िया रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया। तो शुरुआत से ही आपके डीएनए में आर्ट है। आप शुरुआती जो आपके काम थे, आपने जब पेंटर बन गए तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से फोटोग्राफिक ही रहे थे, तो क्या उसके बाद आपने उसको डेवलप करने के लिए या चेंज करने के लिए या इवॉल्व करने के लिए क्या आपने कुछ उसके बाद स्टेप लिए थे? जो शुरुआत के काम थे आपके काफ़ी फोटोग्राफिक थे, तो आपको कुछ उसमें हैंडीकैप लगता था? उसमें मैंने ऋतुनंदा जी के साथ में करीब 10 साल काम किया था। तो उनका था कि राजस्थान के रूरल का मैंने बहुत उनके हिसाब से मैं टूर करता था। पूरे राजस्थान की अलग अलग जातियाँ हैं, गरासिया है, मानिया है, कि सबकी मैं जाके फोटोग्राफ करता था, फिर उसके बेस्ट भी पेंटिंगें बनाता था। इससे मुझे राजस्थान के जो ट्रेडिशनल जो फोक है उसका मुझे अच्छा ज्ञान हुआ। आपने ऋतुनंदा जी के साथ करीब 1990 से काम शुरू किया, उनके साथ हाँ, जुड़े रहे आप। हाँ। कोई दिलचस्प वाकया या कोई दिलचस्प एनकाउंटर उनके थ्रू हुए हो आपके? उनके लिए मैं सबसे फेवरेट आर्टिस्ट था और हम बैठ के ऐसे डिस्कस करते थे कि एक चीज़ पे इसको कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी थी। इतनी हम्बल पर्सन थी वो, आप मतलब इनका बड़े नाम सुन के अपन थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन वो इतने मतलब डाउन टू अर्थ बैठ के हम डिस्कस करते थे घंटों करके। क्या फिर इंस्टेंस तो एक मेरे साथ में मुझे है कि मैं टाइम का बड़ा पाबंद स्वभाव है मेरा। हम तय करते थे कि हाँ भी अब से अभी इतना वर्क लिया है तो 1-1.5 महीने बाद में अपने को आना है।
उस समय तो तारीख तय होती है, उस दिन रक्षाबंधन पड़ गया। पर मेरा कमिटमेंट था कि भी भले कुछ भी हो, रक्षाबंधन को भी क्या तारीख दी है तो तारीख में मुझे पहुंचना है, ये मेरा कमिटमेंट था। जी, बॉम्बे में आप कुछ साल रहे और आपने फिल्मों से जुड़े थे, उसके बारे में बताएं आप। मंजूर उल हक आर्टिस्ट भी थे और आर्ट डायरेक्टर भी थे। तो फिल्मों का जिक्र क्या है वो उन्हीं की आर्ट डायरेक्शन में बनी थी। मैं एक कोई स्टेज डेकोरेशन का काम था, स्टेज पे इलस्ट्रेशन था, तो वो मैंने किया था और उस समय मुझे मंजूर उल हक साहब से मिलने का मौका मिला। उनको मेरी ड्राइंग वगैरह से उनको बहुत प्रभावित हुए, तो फिर उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट रख लिया। और फिर हम जैसे सेट बनाने से पहले कि इलस्ट्रेट करना पड़ता है, डायरेक्टर को दिखाने के लिए पूरा सीन बनाना पड़ता है कि कैसे सेट बनेगा, कैसे आर्टिस्ट आएंगे, क्या क्या उनके कलर्स होंगे, बैकग्राउंड का क्या कलर होगा, तो वो इलस्ट्रेट करने का काम मेरा था। तो ये जो फिल्में जिक्र किया है उसमें मैं उम्र करीब 20 साल के आसपास रही होगी। उसमें 3-4 साल मैंने उनके साथ काम किया था और इस तरह के जो इलस्ट्रेट करना सीन को और फिर सुपरविजन में उनको एग्जीक्यूट करवाना, ये मेरा काम था। 3 फिल्मों में 20 साल की उम्र में जुड़े एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर टू मेक इलस्ट्रेशंस फॉर द सेट्स। अमेजिंग, अमेजिंग। तो पुणे में आप कुछ साल रहे, आप ओशो आश्रम से प्रभावित थे, कुछ उसके बारे में बताएं। मैं ओशो का डिसाइपल हूँ, सन्यासी भी हूँ। तो ओशो की विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो उस संबंध में हम भी पूना गए थे। तो पूना हम सहपरिवार गए थे। पूना में 1 साल आश्रम में रहे सर। वो भी मेरा एक अच्छा अनुभव रहा। उससे मैं ध्यान से भी जुड़ा और मेरे जीवन शैली में और मेरे विचार शैली में भी काफ़ी प्रभाव आया था। तो उसके बाद अब 1999 के आसपास अब जयपुर आपका आना जाना लगा रहा था और आप आके यहाँ पर ही बस गए थे। तो उसी दौरान खीतांजी जी से मेरा एसोसिएशन करीब 23-24 साल का है और करीब कई सालों तक हम बहुत डिस्कशंस करते थे इनके कॉम्पोजिशंस के बारे में और तरह तरह की हम डिस्कशंस होते थे। आपका जो मेरे हिसाब से जो बहुत रिच और प्रोडक्टिव पीरियड था ऑफ करियर, वो आपके रियलिस्टिक वर्क्स थे जो दे वर गेटिंग मोर एंड मोर स्टाइलाइज्ड एंड मोर क्रिएटिव। And my discussions revolved around his compositions कि उसको originality रहे कि एक भी पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से मेल नहीं खाती थी, सब अलग-अलग होती थी और उनकी लेयरिंग भी बहुत हम डिस्कस करते थे। जैसे उनके पहले फोटोग्राफिक वर्क्स थे अर्लियर, उससे अलग हटके ये बहुत क्रिएटिव और रिच टाइम इनका आया था। इन्होंने इतना ब्रिलियंटली बैलेंस किया अपनी उनकी जो रॉयल पेंटिंग्स बननी शुरू हुई तो उसका पूरा माहौल जो पैराफर्नेलिया होता है वो इतना डिफरेंट होता है इनकी रूरल पेंटिंग से। तो इन्होंने इतने ब्रिलियंटली कंपोज किया एक ही सालों में, रॉयल भी किए और रूरल भी किए। रूरल वाज सो एथनिक एंड सो रियल कि वो जो एसिमिलेट किया ग्रामीण जनजीवन, वो अपने आप में बहुत ही यू फील कि माटी के आदमी की देख रहे हैं पेंटिंग। जो उस बारे में थोड़ा बताएं आप, क्या ये इतनी साधना, क्या ऑब्जर्वेशन, कोई योग, किस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन का तीखा हुआ कि आपने इतने ब्रिलियंटली ये सब बैलेंस किया, बताएं। मैं संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जयपुर में आने के बाद मैं इनसे मिला हुआ और मैं एक कंटिन्यू में डिस्कस करते उससे फीडबैक से मुझे बहुत सहायता मिली कि मुझे किस तरह से क्या चीज़। तो ये चीज़ें आपको फिर धन्यवाद है कि अब एक चीज़ पे ये मुझे गाइड भी करती थी और एक दोस्त की तरह बताती भी थी कि क्या चीज़ करने से मैं हर चीज़ सीखता ही आया हूँ। हर आर्ट फील्ड में मैंने एक गुरु से एक चीज़ें सीखी है, जैसे इसमें आपका भी योगदान है। और वही है कि जो सब्जेक्ट अपन ले रहे हैं, मेरा ये रहता है कि सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रूरल करते हैं तो अपन उसको पैचेज में ले सकते हैं उसकी रफनेस दिखाने के लिए, पर अगर अपन फाइनेंस का मान लो रॉयल वर्क कर रहे हैं तो रॉयल वर्क का ट्रीटमेंट और उसके जो बैकग्राउंड है उसमें एक चीज़ पे मैं ध्यान रहता है। रूरल में आपको लगता था वाकई आप गांव चले गए, आपका नजरिया पूरा वहाँ पूरे चलचित्र में उठ जाते थे। एक लोहार की पेंटिंग बनाई थी और एक चरवाहा क्या होता है वो लौट के आ रहा है अपनी भेड़ों को वापस लेकर के। एक उनके जो लेदरी वेदर स्किन होती है सन बर्न, वो दिखाना, वो सब उनकी एक आंखों में एक विजडम की 50 साल का आदमी है तो उसकी शक्ल में क्या दिखाना है, वो सब कुछ नजर आता था। तो एक रॉयल, अब देखिएगा ये स्टाइलिस्टिक रूरल रीमिक्स बना है। इट्स नॉट अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बट इट्स अ वेरी गुड इम्प्रेशनिस्टिक वर्क
बहुत इसमें इन्होंने एसिमुलेट किया बहुत अच्छे तरीक़ों से। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, एक ही कलाकार रूरल भी करे और रॉयल भी करे। उसमें सारा एसिमुलेशन जो रॉयल में है तो पूरा आपको पूरा उनका वेशभूषा, ज्वेलरी इतने सजीव चित्रण करते हैं कि लगता है कि सामने ही रानी साहिबा खड़ी हुई है। सो अमेजिंग। ये तो दौर आपका बहुत रिच रहा, जिसके बारे में जिसके इनके आर्ट लवर्स पूरे इंडिया में और बाहर भी ज़्यादातर इनके रिस्टिक्स काम को, क्योंकि वो उसको समझ पाते हैं, उसमें ज़्यादा उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेयरिंग नहीं खोलनी पड़ती, तो बट दे रियली अप्रिशिएट हिज रियलिस्टिक वर्क्स ऑल ओवर। तो 19 एक बात आपको भी शायद नहीं पता होगी, 1910 के आसपास राजा रवि वर्मा ने ऊपर एक मेल भेजा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब किसी और को उतारे। तो आपको इस बारे में पता था? आपको इसके बारे में 2003 और 4 के आसपास एक बहुत सीवियर ड्राउट आया था राजस्थान में, तो हम भी पेपर पढ़ते थे और हम सब की मानसिकता पे असर पड़ता ही था। मैंने भी देखा था, आप एज अ कलाकार आपकी भी आपको ये भीषण के हालात देख करके आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई थी, तो आपने उस वक्त दौर का बताएं। उस दौर का जो अकाल पड़ा था वो बड़ा ही कारुणिक था। अब रास्ते से जाते थे, पास में आपको हड्डियों के ढांचे दिखते थे, तो वो चीज़ मैंने अपनी पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी कि भी इतनी मतलब अपने आपको तो याद हो तो वो समय बीत गया, लेकिन बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। 3-4 साल तक लगातार बारिश नहीं हुई थी और जगह जगह मतलब हम लोग को पेपर में ये देखते थे कई पशु ऐसे ही पड़े हैं इस तरह से। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सीरीज बनाई थी ड्राउट के ऊपर, मतलब बढ़िया वर्ड बहुत रंग होगा, एक बहुत ही इफेक्टिव बनाई थी, जिसका शो जवाहर कला केंद्र में हुआ था। और बस हम लोग वहाँ जाकर बस रोए ही नहीं, बस देखा और बहुत चोकिंग हो गई थी। ये आपके सामने ही 12 फीट का कैनवस खितांची जी का बनाया हुआ, और दिखाएं 3 वर्क्स। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कोई कमर्शियल काम ही किया हो या सिर्फ रियलिस्टिक ही किया हो, हर दौर में इन्होंने अलग अलग फेजेस देखे। हमने इनके सारे 20-25 साल में जो भी इन्होंने सीरीज करे हैं वो सब स्टडी किया, उनको बहुत उससे फॉलो किया है इनके काम को। क्या आप गांधीवादी हैं और गांधी जी की सोच से आप कितने प्रभावित हैं? मुझे कोई इंस्टांस से मुझे लगा कि मुझे गांधी जी पे पेंटिंग्स बनानी चाहिए, तो इसके लिए फिर मैं गांधी आश्रम गया, गांधीनगर में साबरमती। वहाँ से जाके गांधी जी का पूरा साहित्य लेके आया। पूरा साहित्य मैंने उनको पहले उनका पूरा अध्ययन किया, क्योंकि ये अपने आश्चर्य की बात है कि एक आदमी, उस ज़माने में न फ़ोन होते थे, न आपको किसी को अप्रोच करने की आपको साधन थे, उसके बाद में पूरे देश को उन्होंने प्रभावित किया। ये बहुत ही मतलब अकल्पनीय बात थी। तो मैंने मेरा ये है कि मैं जिस विषय को लेता हूँ उस विषय के पहले गहनता में जाता हूँ। जैसे मैं लंदन के एक व्यवसायी, उन्होंने कुछ राजस्थान इंडिया के हीरोज़ के लिए मुझे राणा प्रताप का दिया था, तो मैं राणा प्रताप के लिए राणा प्रताप के पूरा एरिया जो था वो घूम के आया। पूरा एरिया राणा प्रताप के वक्तव्य पर्सनली देखे जाके कि भी लोकोक्तियाँ नहीं हो, सच में उनका कद काठी क्या रही होगी क्या। तो मेरा हर विषय में मेरा रहता है कि मैं उस विषय की डीप में जाऊँ। तो गांधी जी को सिंपली आप ड्रॉ करना ही काफ़ी नहीं, उनकी क्या विचारधारा थी, उनका क्या प्रभाव था, वो सब शामिल करने के लिए मैं पेंटिंग में कई लेयर्स में वो मतलब जैसे गांधी जी का नाम लोगे तो कल गांधी जी की शक्ल याद नहीं आएगी। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो चरखे के साथ में उनका योगदान है, बच्चों के साथ उनका मिलना जुलना है, कि उनकी जो विचार, उन सब को दिखाने की मैंने वो कोशिश की है कि किस तरह से गांधी जी ने प्रभाव अपने देश पर डाला। These were very large canvases, जैसे बता रहे हैं, इस पे लेयरिंग है, इंटरमिक्सिंग है, उनका सारा जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया वो सब इन्होंने इसमें उतारा है, कोड किया है। तो बहुत डीपली स्टडी करके इन्होंने बहुत ही इफेक्टिव सीरीज दी है। इसके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, इसकी कड़ी जुड़ती है। खितांची जी बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट तो हैं, इनके बारे में बहुत क्रिटिक्स ने और जर्नल्स में छपा है, बहुत लोगों ने इनके बारे में बहुत बढ़िया बखूबी से लिखा है। प्रयाग शुक्ल सर हैं, हिस्टोरियन हैं दिल्ली के, सुषमा बहल बहुत फेमस क्यूरेटर हैं, उन्होंने एक शो क्यूरेट किया था आपका, जिसके बाद म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट्स इन बेल्जियम
ने आपकी 3 पेंटिंग्स अक्वायर की थी। वी हैव टू पुट टुगेदर हैंड्स टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इंडियन आर्टिस्ट भी गैदर्ड, उनके कलेक्शन में है 3 पेंटिंग्स इन म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट्स बेल्जियम। इस शो के बाद वो ही थी, ये आपको दिखाएंगे इसका एक कवर। ओ माय गॉड, कितने किलो की किताब है ये सर, बहुत वजनी अचीवमेंट है ये, फैंटास्टिक। इनकी 3 पेंटिंग संग्रहित की गई थी। एक राधा कृष्णा की पेंटिंग है ये, बेल्जियम में संग्रहित कलेक्शन में म्यूजियम के, और एक लक्ष्मी जी की है, बहुत बहुत खूब, और एक गांधी जी की पेंटिंग है। सुषमा जी का जो ये क्यूरेट किया हुआ है, 2 एडिशंस हैं इसके, फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, फैंटास्टिक। तो वो बहुत जगह से बहुत सारे आर्टिस्ट के कलेक्ट हुए थे, तो इनमें से 3 वर्क्स उनके कलेक्शन में हैं। दिस इज अमेजिंग। आप ये बताएं, पार्टी एनिमल्स आपने एक सीरीज की थी, पार्टी एनिमल्स, मेरे पास बहुत लिमिटेड इमेजेस हैं उसकी अभी, बट इट वाज अ फैंटास्टिक एंड वेरी क्रिएटिव सीरीज दैट ही हैड डन। तो क्या आपने उसके जरिए क्या बताना चाहा, थोड़ा खुल के बताएं, और वो फिगर्स क्या आपके फेवरेट थे या कोई यूरोपियन किसी और से इंस्पायर्ड थे, बताएं। ये सीरीज करने का मेरा मन हुआ था इसमें कि हम हर इंसान, जो इंसान होता है या जो असली में होता है वो दिखता नहीं है। अपन जैसे आप तो साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप तो मुहावरे भी देखते हैं, ये जो काग कौवे जैसा चतुर है कि कोई गधे जैसा सीधा है कि ऐसे, तो वो चीज़ मैं पेंटिंग में लाने की कोशिश की थी, पर किन्हीं कारण 3-4 पेंटिंग बनी, किसी कारण से बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वो सीरीज में पूरी हो नहीं पाई थी। अच्छा, उसका एग्जीबिशन नहीं लगा था कहीं? मेरे को ध्यान है, मैंने कुछ पेंटिंग्स आपके स्टूडियो में देखी थी और मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में। तो कभी उस विषय को लेके मैं जरूर करूँगा। आपने रियलिस्टिक पेंटिंग्स तो बनाई ही हैं, लेकिन क्रिएटिव सररियल पेंटिंग्स भी बहुत बहुत बढ़िया बनाई हैं। इनका वो बहुत रिच पीरियड हम मानते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और ईच वर्क बाय इट्स टाइटल अलोन विल सिग्निफाई द होल स्टोरी, इट विल टेल अ होल स्टोरी। आप बोलेंगे विभक्त मन, कैन यू प्ले दैट? डिवाइडेड माइंड, विभक्त मन, टू रीच आउट और नॉट टू रीच आउट, विभक्त मन, ह्यूज पेंटिंग इट इज। और द अदर वन, फेसेस, This one is a very special piece. ये हमारे आर्चल म्यूजियम में आमेर किले में कई सालों रही है पब्लिक कलेक्शन से। ये बहुत ही उम्दा और सररियल, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसमें मैंने हर चेहरे के एक्सप्रेशन अलग अलग देने की कोशिश की है। एक आदमी के अपने सबकॉन्शियस के 7 लेयर्स होते हैं, तो मैंने उस 7 लेयर्स को उनके अपने मुंह, अपने एक्सप्रेशन पे उसका क्या क्या असर पड़ता है, उनको दिखाने की कोशिश की है। बहुत खूब। हम कभी, हमारे अंदर अपनी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कभी हम चिंतित हैं, कभी हम अचंभित हैं, कभी हम बहुत सीरीन हैं। दिस वाज अ मास्टरपीस एंड ग्लोबल ऑडियंस हैव एंजॉयड दीज वर्क्स इन द आमेर फोर्ट डिस्प्ले। Thematically also they opened up a whole story और very amazing and awesome works। आप ये बताएं, आपने रियलिस्टिक काम किए कितांची जी, और सररियल काम भी किए, तो यहाँ पहुँचने के बाद आप कभी कभी क्या रियलिज्म काम वापस से करते हैं, तो क्या ये कोई डिमांड के बेस पे होता है? मेरी छुट्टियां भी कैनवास पे होती है। जो मैंने साल भर रियलिस्टिक का काम कर लिया, तो ब्रेक चाहिए, तो फिर ब्रेक के लिए मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ कि कुछ रंगों से खेलता हूँ, ऐसे कैनवास के साथ खेलता हूँ, तो फिर उनको वापस मिटा भी देता हूँ। पर मैं वो छुट्टियाँ भी, वो भी मुझे एनरिच करके जाती है, कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाती है। तो ये मेरा दौर चलता रहता है। मैं छुट्टियाँ हर साल महीना 1.5 महीना में एब्स्ट्रैक्ट में या किसी और स्टाइल में या कोई जो भी मेरा सोचना है कि मुझे मेरे प्रति ईमानदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जो इंट्यूशन आए मैं उसको फॉलो करूँ, नहीं कि मैं जो लोग चाहते हैं या लोग, तो वो मैं साल में एक बार छुट्टी ले लेता हूँ और जो मेरे मन में आता है वो मैं करता हूँ। सर, मिटाने से पहले हमको खबर कर दें, हम घर के बाहर तो आपकी लाइन लग जाएगी या हम बर्थडे पे आपकी गिफ्ट लेके आ जाएंगे, हम रिटर्न गिफ्ट ले लेंगे। अच्छा, स्वागत है आपका। रियलिज्म और सररियलिज्म करने के बाद आप एब्स्ट्रैक्शन की ओर आए हैं कई बार, और इस पे आप क्यों काम करना चाहते हैं इस फील्ड में? इसमें तो ऐसे कई लोगों ने, आर्टिस्ट ने पहले भी काम किया है, तो आप इसमें क्या खोज रहे हैं और अपने ऑडियंस को आप क्या बताना चाहते हैं इनके जरिए? मुझे पेंटिंग में हमेशा कुछ नया चैलेंज चाहिए होता है।
कोई पेंटिंग में चैलेंज नहीं हो तो फिर वो पेंटिंग अधूरी रह जाती है। तो ये है कि भी मैंने रियलिस्टिक में काफ़ी काम किया, सब्जेक्ट को लेके काम करता हूँ। हर एग्जीबिशन मेरे एक सब्जेक्ट के ऊपर होती है, एक सब्जेक्ट होता है तो आपको इंस्पिरेशन कंटिन्यू रहती है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं नया, तो वो मेरा चलता है। अब पेंडेमिक आया तो खासकर हमारे याद करना चाहूँगा अर्जुन प्रजापति जी जो मेरे गुरु भी रहे हैं, उनके गुजर जाने बाद में मैं थोड़ा में व्यक्ति भाव भी आ गया कि मैंने अपने लिए या सबके लिए तो बहुत कुछ बनाया। मैंने अपने आप की खोज में जो मैंने भाषा सीखी है, रंगों की, रेखाओं की, उनको मैं एज ए क्लासिकल बेस में कैसे ला सकता हूँ, वो लाने की मेरी कोशिश थी और मैंने काफ़ी एंजॉय भी किया है। So this is what is called flitting like a butterfly from one subject to the other. So for his own satisfaction. एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने सीरीज बनाई थी, ओल्ड मास्टर्स के ऊपर उन्होंने रीमिक्स करके कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से इनकी जो मोनालिसा वो इतनी फेमस हुई थी और 2014 में राइटर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल हुआ था पेरिस में। तो उन्होंने जो पोस्टर्स पूरे पेरिस में लगाए उसके लिए चूज की गई थी इनके द्वारा बनाई हुई मोनालिसा। सो इट वाज कॉल्ड, आप दिखाएंगे सर प्लीज, मोनालिसा रीइमेजिन्ड, एंड इट इज अ चैप्टर to his work, which is again, please put your hands together, give a big round of applause. This Mona Lisa poster featured all over Paris for the Writers of India Festival. और इसमें जो क्रिटिक ने लिखा है इनके बारे में, वो लिखा है कि गोपाल स्वामी खेतांची जी का जो आर्ट वर्क है, it has journeyed through many different phases throughout his career, finally culminating into a sophisticated assimilation of tradition and modernity. His appreciation of India's rich and colorful history remains evident throughout his paintings, particularly his admiration of brave warriors and his fondness for the unparalleled beauty of Rajput women, as referenced in his Mona Lisa reinterpretations, which is quite an achievement for Indian artist. तो ये जो वॉरियर्स की बात करी, ये शायद महाराणा प्रताप की बात करी इन्होंने यहाँ पर, क्या वो भी आपके किसी शो में था वॉरियर्स? नहीं, वो पेंटिंग तो शो हुई नहीं थी। सो आपकी शोहरतों के चर्चे करते हैं, आपकी पेंटिंग्स इतने प्राइवेट और गवर्नमेंट कलेक्शंस में निहित हैं, पूरे दुनिया में आपके इतने चर्चे हैं। जयपुर में शुरुआत करें, 25 साल पहले हमने रश्मिकांत दुर्लभ जी भाई साहब आए थे, तो सबसे पहली पेंटिंग जो गैलरी सेल हुई थी वो उनके पास संग्रहित है। आपने बड़े बड़े लोगों के आपके शोज में लोग विजिट किए हैं, उन्होंने आपका काम सराहा है। हमने कुछ इसमें फोटोग्राफ्स आपके डाले हैं, इसमें कमल मुरारका जी के साथ हैं, अजिताभ बच्चन जी के साथ हैं, आपके विजिट किया है उन्होंने। बाबा सहगल आपके इसमें शोज में आए हैं, बहुत सराहा है। जूही चावला, जय, उनके हस्बैंड जय मेहता, और आपने दिलीप और स्वाति पिरामल जी की बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं जो सब जगह पब्लिश भी हुई हैं। बहुत ब्यूटीफुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स हैं। और हमारे आमिर म्यूजियम में भी कलेक्शन है इनका, बहुत बढ़िया। और पूर्वी पारिक जी, हर्ष गोयनका, जावेद अख्तर साहब, द लिस्ट इज एंडलेस। हिज वर्क्स आर इज वेरी गुड कलेक्शंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। और आप कुछ और बताएं, आपको कुछ ऐसे दिलचस्प वाकया हो? लैंसटन साहब हैं, बहुत सारे जो आपके लता मंगेशकर जी के पास एक इनकी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है, और उन्होंने अपने उनके लेटर हेड पे एक उनके लिए, आप बताएंगे 4 लाइनें उनके काम पे लिखी हैं। दिस पेंटिंग इज विद लता मंगेशकर जी, और वो उन्होंने बहुत भावुक होकर इनको एक उसमें कमेंट लिखे हैं लता मंगेशकर जी ने। आप कुछ बताएंगे कुछ दिलचस्प वाकये जो आपके शोज पे लोग? लता मंगेशकर जी से मिलना अर्जुन प्रजापति जी के साथ हुआ था। बड़ी सिंपल घरेलू, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है और इतनी सरलता से आपसे मिलती है, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। और उनको ये पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, मेरे वर्क के फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाए थे उन्हें, तो फिर उन्होंने वो ये पेंटिंग बहुत पसंद की, क्योंकि बाप और बेटी की है ना, तो वो बता रही थी कि उनके पिता के साथ उनके कैसे संबंध थे, कैसे इंस्पायर हुए थे अपने फादर से। तो मैंने फिर ये पेंटिंग उनको भेंट की थी। एक पेंटर्स इच के बारे में बात की जाती है हमेशा। हर आर्टिस्ट को कुछ नया, कुछ ड्रीमिंग क्रिएट करने का बहुत हंगर होती है अंदर से।
तो आपकी इच जो है या कैनवस पर आप निरंतर क्या खोज रहे हैं, और उसके बारे में बताएं। मेरा ये मानना है कि पेंटिंग करते हुए जितना मैंने एंजॉय किया है उतना ही देखने वाले को उसका आनंद आएगा। तो मैं हर पेंटिंग को खुद एंजॉय करता हूँ और वही मुझे वापस रिटर्न में मिलता है। तो यही मेरी खोज रहती है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या मैं जो मुझे इंस्पायर करे। जो पेंटिंग या कोई सब्जेक्ट में इंस्पायर नहीं करता था उसको अधूरा रह जाता है। तो ये खोज निरंतर जारी है। मुझे खुद को भी पता नहीं है कि मैं खोज क्या रहा हूँ, पर मैं हर समय पेंटिंग में लगा रहता हूँ। आज भी स्टूडियो में ही रहता हूँ, वहीं सोता हूँ, वहीं रहता हूँ मैं। कुछ और स्पेशल बताना चाहेंगे आपके लाइफ के बारे में, अपने कोई जर्नी के बारे में शेयर करना चाहेंगे कुछ? तो आप लोगों ने इतना महत्व दिया है तो मैं समझ में आती नहीं क्यों दिया, पर यात्रा है, मेरी कला यात्रा है। मैं अपनी कला यात्रा में एक स्टूडेंट की तरह हमेशा लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने इतने लोगों को गुरु बनाया, इतनी किताबें मैंने पढ़ी, डिक्शनरी ले के किताबों के लिए मैंने मतलब कुछ दिन शेयरिंग करके सब किताबें खरीदी मैंने, और उनको कैसे मैं डिक्शनरी ले के पढ़ता था। कुछ ना कुछ सीखने की मेरे में हमेशा लालसा रहती है और वही मैं जारी रखना चाहता हूँ। आपको क्या शेर शायरी में, पोइट्री में, म्यूजिक में इंटरेस्ट है? बताएं। हाँ, म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। म्यूजिक में बहुत सुनता हूँ। किस तरह से? खासकर क्लासिकल हुआ, सेमी क्लासिकल हुआ, इस तरह का ज़्यादा रहता है। तो मैं कुछ सीखने की कोशिश भी करता हूँ। सैक्सोफोन सीख रहा हूँ मैं आजकल। अरे वाह। तो मेरा म्यूजिक के स्टूडियो लाइफ है, तो म्यूजिक तो हमेशा चलता ही रहता है, और खास करके क्लासिकल का ज़्यादा रहता है। समझता कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे म्यूजिक चाहिए। किचन में आप कभी गए? किचन और सब्जी मंडी दो जगह है जहाँ मैं जाना पसंद नहीं करता। वेरी गुड, आप प्रिविलेज। और बताएं अपने बारे में, कभी आपकी बीवी से कोई नोकझोंक हुई हो या झगड़ा हो गया हो और आप उठ कर मायके गए? मायके बताएं, खुल के बताएं। ये हमारा मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इंदु जैसी पत्नी मिली, कि कलाकार को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पल पल में मूड बदलते रहते हैं। और अब हमारी शादी को करीब 43 साल हो गए हैं, और मुश्किल से कुल मिला के 43 साल में गिनो तो कुल मिला के महीना भर हम अलग रहे हैं। आपको ऊपर वाला बहुत बहुत लंबी उम्र दे और आप बहुत 3-4 डिकेड्स और काम करें और हम सबको नए नए सीरीज देखने को मिले, ये हम कामना करते हैं। और किसी को कोई सवाल पूछना चाहें कोई? जी सर, आपने बहुत सारे गुरुओं से सीखा, आपने किसी को सिखाया, उन शिष्य के बारे में बताएं। मेरा एक शिष्य है, लक्ष्य, वो भी मैं जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया है। राजा सर। जी सर। जी लक्ष्य, जा बेटा, लग जा बुलाया। जी, आपके जो चेहरे होते हैं वो बहुत स्पेशल है, या ऐसे ही अपने आप ही एक ऐसी चीज़ बन जाती है, या किसी की मतलब आपके दिमाग में किसी की छवि रहती है? तो उसमें मैं चाहता हूँ देवीय रूप आए। तो देवीय रूप लाने के लिए, उसके लिए मेरी जो कल्पना में जो आँख है जो सबसे सुंदर हो सकती है, कल्पना में जो होठ है, कि कल्पना में जो नाक, तो मेरी कल्पना में जो खूबसूरती है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हर बार अलग अलग चेहरे ही देखेंगे आप, कोई भी चेहरा सुंदर नहीं हर चेहरा है, बट हाँ हर चेहरा खूबसूरत भी है। अब कोई दासी है तो वो दासी के हिसाब से बनाते हैं उसका चेहरा, और रानी है तो रानी के हिसाब से उसमें पूरा गौरव और ब्यूटी होती है। सबसे खूबसूरत दासी होती है। आपकी पेंटिंग्स जो हैं उसमें राजा रवि वर्मा की कुछ थोड़ी सी झलक मुझे दिखती है, पर मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा पेंटिंग्स आप दिखा रहे हो ज़्यादातर फिगर्स के बारे में है, ह्यूमन के हैं। ये पिक्चर है बच्चों की या किसकी, आर्टिस्ट रोमांटिक होते हैं,
वो मैं सोचता आप भी होंगे। नेचर जो है, लैंडस्केप वो है, वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। इसका क्या कारण है? मैंने अभी वो पेंटिंगों के बैकग्राउंड में मैं नेचर को यूज करता हूँ। अभी मैंने जो साज सिंगार एग्जीबिशन की है उसमें मैं बैकग्राउंड, कई पेंटिंगों के बैकग्राउंड में मैंने नेचर को दिया है। अलग से खाली लैंडस्केप मैंने नहीं बनाया है, और बनाए हैं तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाए हैं, पर्टिकुलरली उनकी कोई एग्जीबिशन वगैरह नहीं की मैंने। आपने मिनिएचर और रियलिस्टिक को बहुत करीब लाने की कोशिश की है, मतलब फर्क मिटना शुरू हो जाता है कि कौन सी मिनिएचर में है और कौन सी रियलिस्टिक में। कितना बारीक डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच? मुझे सौभाग्यशाली रहा कि द्वारका प्रसाद जी जैसे गुरु मिले। पहले मैं रियलिस्टिक बनाता था, पूरे मसल्स वगैरह मेरे उसमें आते थे, तो उनसे मिलने के बाद में वो जो लयात्मकता है अपने ट्रेडिशनल आर्ट की, सॉफ्टनेस है, उनकी जो रिदम है, उनको पकड़ने की मैंने कोशिश की। और कई पेंटिंगों में मैंने बैकग्राउंड में यूज भी किया है, ट्रेडिशनल अपनी पेंटिंग है उनको वैसे हालांकि ऑयल में बनाया मैंने, लेकिन उनको यूज किया है मैंने बैकग्राउंड में, ताकि वो उसका रिफ्लेक्शन दिखे, वो स्टोरी को एक्सटेंड करे। मोनालिसा में आपने दोनों टेक्निक यूज की है, रियलिस्टिक भी है और मिनिएचर भी। ये ऐसे ख्याल आया था कि जैसे मैं कर रहा था, ओल्ड मास्टर्स से मैंने काफ़ी सीखा है, कलर्स की स्टडी के लिए ओल्ड मास्टर्स की मैंने स्टडी की है। तो मैंने क्या उनके जो है, जैसे आप ट्रांसलेशन होती है, तो वैसे मैंने उनके वातावरण को बदल के भारतीय अपने राजस्थानी परिवेश में उनके कंपोजिशंस को बनाया हमने। ऐसे मोनालिसा में मुझे आया कि इसमें एक यूरोपियन ब्यूटी है और एक इंडियन ब्यूटी है, दोनों का, और ये मेरी सबसे ज़्यादा प्रकाशित पेंटिंग है ये। मैं पूछना चाहूंगा, आपने कोई पेंटिंग रिलीजियस भाईचारे में बनाई है क्या? भाईचारा रिलीजियस वो मैंने गांधी जी की जो पेंटिंग बनाई थी उसमें एक बनाई थी कम्युनल हार्मनी प्लीज करके बनाई थी। उसमें था कि कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, गांधी जी सबको मतलब कह रहे हैं कि शांत रहो, जैसे उनका मैसेज दे रहे हैं, वो मैंने पेंटिंग बनाई थी। थैंक यू। जो अब उदयपुर के म्यूजियम में है, वेस्ट जोन म्यूजियम है, उसमें जो सर ने बोला उसके बारे में बताना चाहूँगी मैं कि जो उन्होंने रॉयल या सिटी के बनाए हैं फिगर्स, उसमें बहुत सॉफ्टनेस है, मस्कुलर टेंशन नहीं है, लेकिन जो रूरल बनाए ग्रामीण वाले, लोहार है, कोई और गाँव की लेडी है, कुछ उठा के लेके जा रही है, तो उनकी मस्कुलर टेंशन उन्होंने बहुत बखूबी दिखाई है। बड़े स्ट्रेन वाले फिगर्स हैं और स्किन पे भी थोड़ा वो है। केतांची जी, आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं संगीता जी आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने कम समय में केतांची जी की पूरी कला यात्रा को हमारे सामने उभार कर रख दिया। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ज्ञात नहीं थी, हालांकि मैं इनकी कला में बहुत गहरी रुचि लेता रहता हूँ और इनका आत्मीय भी हूँ, लेकिन आपके कारण इनकी कला के बहुत सारे आयामों का आज पता चला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केतांची जी, आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने शुरुआती जीवन की चर्चा करते हुए उस ज़माने की कैलेंडर आर्ट से एक नाम SM पंडित को याद किया। उस ज़माने में इस तरह के बहुत सारे लोग बहुत लोकप्रिय थे और हम सब लोगों का शायद कला से पहला परिचय मुलगांवकर या JP सिंगल या इस तरह के बहुत सारे लोगों की कला से हुआ है। आपने तो इतना सारा पढ़ा है, आप अब किस कलाकार को अपना आदर्श मानते हैं या उससे आपकी स्पर्धा है, आपको ऐसा लगता हो कि काश मैं वैसा कुछ कर सकूं? सिंगर साहब से का तो बहुत स्नेह मिला था मुझे। अच्छा। सिंगर साहब मेरे एग्जीबिशन में आए थे बॉम्बे में, और वो तो मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो हर पेंटिंग को देखते फिर आके मेरे से गले मिलते और मुझे किस करते। तो उन्होंने उस दिन मुझे कम से कम 20-25 किस मिले उनसे। क्योंकि वो बहुत खुश थे, उन्होंने रियलिस्टिक में और कैलेंडर आर्ट में बहुत शानदार काम किया है, और उन्होंने हमें अपने घर पे आमंत्रित भी किया था, और उन्होंने एक एक पेंटिंग, क्योंकि उनको लगा कि मैं उनकी जो आर्ट है रियलिस्टिक आर्ट को आगे, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन बॉम्बे में उससे पहले रियलिस्टिक आर्ट की एग्जीबिशन नहीं होती थी। बॉम्बे में 2006 में 5 में मैंने एग्जीबिशन की थी, तब तक बॉम्बे में ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी शो, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न का दौर था वो, तो रियलिस्टिक, तो उसके कारण उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। और
पहले तो उनसे अब मैं फॉलो करता हूँ गेरा टीचर को। गेरा टीचर अमेरिकन आर्टिस्ट है, तो वो रियलिस्टिक भी करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं। उनके एब्स्ट्रैक्ट भी इतने ही पॉपुलर है जितने उनका रियलिस्टिक वर्क पॉपुलर है। जेरार्ड के वर्क्स बहुत मल्टी लेयर है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्टेड है, बहुत म्यूजियम्स में पब्लिक डिस्प्ले हैं। तो मेरे रोल मॉडल में वो आते हैं। चोपड़ा जी। नमस्कार। ये तो जरूरी नहीं कि सब आपको अपने बारे में सब कुछ पता हो। हम लोग और भी हैं जिनको कि ये पता है कि आपने क्या क्या काम किए। अभी एक सज्जन ने यहाँ पूछा था कि रिलीजन के अंदर आपका क्या योगदान है, तो मैं यहाँ पे जो मेरे जैसे अन्य बैठे हैं और मेरे से ज़्यादा जो समझदार हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी जैन साध्वी एक हैं साध्वी प्रमुखा श्री, जिनका अभी शरीर शांत हो गया था। उनके 50 साल का जो एक पीरियड था जिसके अंदर वो साध्वी प्रमुखा रही 700 साध्वियों के हिंदुस्तान में, उनके लिए आपने ये तस्वीर बना के मेरे को गिफ्ट की। और ये इनका फ़ोन अचानक आया कि आपको ये वाली अच्छी लगी तो मैंने आपके लिए बनाई है। और जो ग्रंथ बना उन पे, उनके 81 ईयर्स की एंटायर जर्नी पे, उस ग्रंथ का जो आवरण पृष्ठ है वो ये है। तो ये आपका योगदान इसके अंदर है। और इस काम को अगर किसी ने ओके किया तो उससे पहले इनका पूरा प्रोफाइल तेरापंथ धर्म संघ के सभी श्रावक ने, आचार्यों ने, सबने देखा। उसके बाद ये वाला काम भी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी काम नहीं था, इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल वर्क ऑफ अ रिलीजन सेक्ट। और मैं आपके लिए जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इनका एक फ़ैन हूँ। आई रियली एंड आई ऑल्सो हिज फ्रेंड एंड आई थिंक यू ऑल्सो काउंट मी एज ए फ्रेंड। ईश्वर मेरे को इतने रुपए दे कि मैं आपकी जो मेरे को आपकी पेंटिंग पसंद आए। आमीन। केतांजी जी, आपके काम पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ कहाँ संग्रहित हैं, बहुत बढ़िया आपके बड़े बड़े कलेक्शंस में काम हैं। इन सब के जाने के बाद आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका स्विस अकाउंट का नंबर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और ऐसा लगा कि हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं और ऐसे कुछ गपशप चल रही है। बहुत ही मन से आपने सारे सवालों के जवाब दिए और संगीता जी ने भी बहुत खुले दिल से, बहुत ऑनेस्टली सारे सवाल आपके सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। संगीता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी मेहनत की सारी डिटेल निकालने में। और नहीं तो मेरा बोलने का बहुत कम काम करता है, मतलब रोज तो कुछ शब्दों में मेरा काम चल जाता है। He is so humble कि कितना ही ऊंचा काम कर लेंगे लेकिन उसके बारे में ऊंचा बोलते नहीं है। बोलना इनका वो नहीं है, टैलेंट नहीं है इनका, बस क्रिएशन बहुत गजब का टैलेंट है। बहुत गजब। जब हम बाहर थे हाई टी के लिए तो यहाँ के जनरल मैनेजर ने हमसे साझा किया, मुझसे और सर्वेश जी से, कि क्योंकि इनका प्रोग्राम था और एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो वो बहुत सेफ में रखते हैं, वो उन्होंने लगाई और उसके बाद फिर वो उतार के उसको वापस अंदर रख देंगे क्योंकि स्पेशल ओकेजन्स पर वो पेंटिंग लगाई जाती है। तो सर्वेश जी दौड़ते हुए इनके पास गए क्योंकि उनको लगा कि आजकल बहुत ज़्यादा नकल भी होती है कि ये कॉपी तो नहीं है। तो फिर इन्होंने बताया कि नहीं, वही पेंटिंग है। तो सौभाग्य है हमारा कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी राजस्थान फोरम के 2 सीनियर मेंबर्स जो पहली पंक्ति में ही बैठे हैं, हमारे फेवरेट नंद भारद्वाज जी एंड मधु जी, दोनों, आप दोनों का आशीर्वाद है। आप आइए और एक मोमेंटो दीजिए मधु भट्ट जी और नंद जी भारद्वाज जी। केतांजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज अ स्मॉल expression of gratitude from our side. A huge round of applause. आइए संगीता जी, आप भी तस्वीर में आइए प्लीज। धन्यवाद नंद जी, धन्यवाद मधु जी।
मैं आपसे निवेदन करूंगी आप यहीं खड़े रहिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी और एक हमारी जो कस्टमरी पिक्चर होती है फोरम मेंबर्स की वो यहाँ पर खिंचवाएं। आपको और बता दें एक बहुत अच्छी खबर मैं नहीं बता, ये हम सभी राजस्थान के लोगों के लिए आज बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार ने एक कंपटीशन चलाया था कि जितने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन होते हैं उसको उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए पोर्टल पर। तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में आज राजस्थान 1585 कार्यक्रमों की रिपोर्ट अपलोड करके फर्स्ट आया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा की है। तो ये हम सब राजस्थान के लिए बड़ी उसकी गर्व की बात है और उसमें हमारे कार्यक्रमों को भी अपलोड किया गया राजस्थान फोरम के लिए। थोड़ा पीछे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस शाम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान फोरम का प्रयास डेजर्ट सोल की इस श्रृंखला में आज आप रूबरू हुए गोपाल खेतांची जी से। हम इस तरीके से आपके समक्ष और कार्यक्रम देते हुए आएंगे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे श्री सीमेंट्स और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ITC राजपुताना। थैंक यू।